Hello students. So today I am going to continue the previous topic, journal. In last class we have studied about the posting of simple entry. Today we are going to discuss about posting of component entry and opening entry. So first we will start with posting of component entry. So before going to start the numerical, first you will see the meaning of component entry. So component entry means when there is more than 2 debit or more than 2 credit which is coming under debit or credit means that is a component journal entries. जैसा कि अगर आपको डेबिट में मोर देन 2 एंट्री आता है, एक जो है आपका क्रेडिट में एक आता है, नहीं तो जो है अगर सपोज जो है क्रेडिट में 2 एंट्री आता है, डेबिट में 1 एंट्री आता है, उसको बोलते हैं हम लोग component entry. So now we will see some of the example. So how to pass the component journal entries. On 1st April and 1st April 2020, cash paid to Arun rupees 9,000 in full settlement of rupees 10,000. So it means, so actually the business should pay to Arun rupees 10,000, but actually we paid only rupees 9,000. Here in this transaction, how many accounts are involved means, now we can see first one is cash account, second one is Arun account. यहाँ में आपको कितना अकाउंट इन्वॉल्व होने से 2 है, लेकिन मोर देन 2 है. सो कैसा, जैसा कि अरुण को जो है हम लोग देना कितना है, एक्चुअली ड्यू टू अरुण रुपीज़ 10,000. सो अरुण को कितना देना, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ में परचेस अकाउंट डेबिट टू अरुण अकाउंट रुपीज़ 10,000. सो इसका मतलब क्या, ऑलरेडी वी परचेज गुड्स फ्रॉम अरुण ऑन क्रेडिट, वी हैव टू पे टू अरुण रुपीज़ 10,000. नाउ वी आर पेइंग ओनली रुपीज़ 9,000. सो व्हाट अबाउट 1,000 मीन दैट इज़ अ डिस्काउंट. कैसा देखिए, सो अरुण को देना है कितना, 10,000. सो एक्चुअली पेड कैश रुपीज़ हाउ मच, रुपीज़ 9,000. नाउ 1,000 इज कमिंग डिफरेंस, द डिफरेंस इज डिस्काउंट रिसीव्ड. जैसा कि एक्चुअली उसको देना है हम लोग, कितना देना है, 10,000 रुपये देना है, लेकिन हम लोग देते हैं कितना, 9,000. तो इसका मतलब 1,000 कहाँ चले गया, उनसे 1,000 जो है कम पे किया, इसको बोलते हैं हम लोग डिस्काउंट रिसीव्ड. जैसे कि अगर बिजनेस भी कभी कभी क्या करेंगे, सो डेटार को डिस्काउंट देगा. जैसे कि हम लोग भी क्या करते हैं, कभी कभी जो है हम लोग क्या करते हैं, समटाइम वी आर आल्सो गेटिंग डिस्काउंट फ्रॉम द शॉप. सो सिमिलरली हियर आल्सो द बिजनेस समटाइम दे विल गिव द डिस्काउंट टू द व्हाट, टू द परचेसर. लाइक बिजनेस को सो जो है मैन्युफैक्चरर नहीं तो कंपनी नहीं तो होलसेलर क्या करेगा, बिजनेस को देगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्काउंट रिसीव्ड. सो इट इज़ ए इनकम फॉर द बिजनेस. ये जो है आपका डिस्काउंट रिसीव्ड जो है इनकम है. नाउ यहाँ पे जो है हियर देर आर 3 अकाउंट्स आर इन्वॉल्व. सो अरुण, नाउ अरुण इज कमिंग अंडर पर्सनल अकाउंट. नाउ अरुण इज ए रिसीवर मीन्स डेबिट में आ जाएगा, इट विल कम डेबिट. नाउ पेड कैश मीन्स इट इज कमिंग अंडर रियल अकाउंट. वी पेड कैश मीन कैश इज गोइंग आउटसाइड ऑफ द बिजनेस, दैट मीन्स क्रेडिट गोes out. So it is income. So on the, what is the rule for income means, it is coming under nominal account under credit side. So it is income means it will come, all incomes and gains are coming under credit side. Now in this case there are 2 credit and 1 debit. So इसको हम लोग क्या बोलते हैं, component entry. This is a component entry. So how to pass the journal entries means, so here I am making format. So यहाँ मैं format बना रहा हूँ. So this is a format of journal entries.
So this column will write date, then particulars, then here LF, debit, here rupees, here credit column rupees, here we will write journal. Here you can write page number, so page number 20. So this is a page number of journal, page number 20 है. Here I am writing 2020, year जो है आपका 2020 है, April 1st. So what is the first one? अरुण जो है आपका डेबिट में, फर्स्ट राइट डेबिट को पहले लिखना है. अरुण अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. Second one is to discount received account. Now you can see in credit side there are two accounts are involved. Here I written two accounts, that means componentary. Here more than one accounts are there, मतलब दो अकाउंट है यहाँ में, तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, componentary. So यहाँ में अमाउंट आ जाएगा. So actually we paid ₹9,000. एक्चुअल ड्यू टू अराउंड ₹10,000. उसका एक्चुअल ड्यू कितना है, 10,000 है. वी पेड ओनली ₹9,000. नाउ 1,000 इज अ डिफरेंस, दैट अमाउंट विल टेक अस अ डिस्काउंट रिसीव्ड. हियर नरेशन बीइंग कैश पेड टू अरुण in full settlement. Here we can say here we can put the LF, for example 5, this one is 10, this one is 15. जैसे कि आपको पता है, so इसको जो है आपको after preparing journal we will posting into what, ledger. जो बनाने के बाद क्या करेगा, will prepare individual account like Arun account, cash account and discount received account. So simply I put here LF, this is 5, this one is 10, this one 15. जैसा कि इसको जो है पेज नंबर ऑफ जर्नल एंट्रीज 20, और यहाँ पे जो हम क्या डाला है आपको LF, ये हो गया आपका 5, ये 10, ये 15. सो दिस इज जर्नल एंट्रीज. नाउ वी कैन प्रिपेयर ledger account for Arun account, cash account and discount received account. So here we can prepare three accounts: Arun account, cash account, last one is discount received. So this is a page number of, for example, page number 10. Here JF will write page number 10. So this is a Arun account, पेज नंबर इज LF का जो है पेज नंबर जो है आपको कितना है, पेज नंबर 5. हियर वी कैन राइट पेज नंबर 10. सेकेंड वन पेज नंबर, फर्स्ट वन इज 5, सेकेंड वन इज 10, थर्ड वन इज पेज नंबर 15. So how to post into ledger means, now Arun account is debit, आपको पता है. So Arun account जो है debit है, which part is debit, this part is a debit. So here how we can write under ledger account means कैसा लिखेंगे Arun account में. So Arun account में जाके जो है debit side में क्या लिखना है, फर्स्ट जो है आपको क्या नहीं करना, इन Arun account we should not write again Arun account, जो है दोबारा Arun account में जाकर Arun नहीं लिखना, we will write the corresponding entry, opposite entry. opposite में क्या क्या है, कैश अकाउंट एंड डिस्काउंट रिसीव. देयर आर टू अकाउंट्स आर देयर, दो अकाउंट है. सो पहले जो है आपको फर्स्ट विल राइट ईयर लिखना है 2020 अप्रैल 1st टू कैश अकाउंट, सेम डेट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट. So there are two accounts are there. In Arun account, in debit side we write first to write to cash account, first to debit आपको क्या करना, corresponding entry, opposite entry पहले cash है to cash account. The second one is to discount receipts. So दो क्रेडिट है यहाँ पे, इसलिए क्या करना है, अरुण का अकाउंट डेबिट में दो आपको क्रेडिट लिखना है. So what is the amount? Here we should not write 10,000, आपको 10,000 बोल के यहाँ नहीं लिख देना,
So here we'll write 9,000, here 1,000. Now the total is 10,000. So we are posted अरुण अकाउंट डेबिट साइड, अरुण अकाउंट का डेबिट साइड में हमने लिख दिया टू कैश अकाउंट, क्योंकि इसका हमको रूल क्या, व्हाट इज द रूल फॉर पोस्टिंग टू लेजर मीन्स विल टेक द करस्पॉन्ड एंट्री, ऑपोजिट एंट्री. सो अरुण का अकाउंट में जाके अरुण ने लिख देना, तो उसका ऑपोजिट में टू कैश टू डिस्काउंट रिसीट, टू कैश अकाउंट रुपीज़ 9,000 and to discount rupees 1,000. Now we will post into what, cash account. Now cash account is credit, credit में जाना, this part is a credit. फर्स्ट जो है आपको क्या करना है, ईयर लिखना है, देन मंथ अप्रैल फर्स्ट बाय. सो व्हाट इज द करस्पॉन्ड एंट्री, व्हाट इज द ऑपोजिट एंट्री फॉर कैश अकाउंट मीन्स बाय अरुण अकाउंट. क्या लिखना है, अरुण अकाउंट रुपीज़ विल राइट 9,000 नॉट 10,000. ये नहीं कि आप बाई अरुण अकाउंट बोल के क्या नहीं लिख देना, 10,000 नहीं लिखना, 9,000, क्योंकि अरुण अकाउंट का जो है आपको एक्चुअल कैश हम लोग कितना पे किए तो उतने यहाँ पे आपको लिखना है. द नेक्स्ट वन डिस्काउंट रिसीट्स. सो वन सेकंड, द डिस्काउंट रिसीट इज शोइंग क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट साइड. तो यहाँ पे ईयर लिखना है 2020 अप्रैल फर्स्ट बाय अरुण अकाउंट. नाउ द अमाउंट इज रुपीज़ 1,000. याद देखिए यहाँ पे मोर जो है टू क्रेडिट है, तो अरुण अकाउंट में जो है डेबिट उसका करस्पॉन्ड एंट्री दोनों लिखना है. उसके बाद जो है आपको कैश अकाउंट में जो है आपको अमाउंट लिखते हुए ध्यान देना. सो एट द टाइम एंटर इन द अमाउंट यू हैव टू गिव मोर इंपॉर्टेंस, जो है ज़्यादा ध्यान देना, यू हैव टू गिव मोर केयर. जो है आपको बाय अरुण अकाउंट लिख के क्या नहीं करना, 10,000 नहीं लिखना, वी हैव टू राइट ओनली 9,000. एक्चुअली वी पेड ओनली 9,000. जो कैश का अमाउंट जो है वो जगह यहाँ लिखना. वैसे ही जो है आपका डिस्काउंट रिसीट उसका करस्पॉन्ड एंट्री ऑपोजिट जो है आपका बाय अरुण है, अरुण लिख के कितना लिखना है, 10,000 नहीं लिख देना, 1,000. सो दिस इज एग्जाम्पल फॉर compound journal entry. So in second example, salary paid, rent paid, commission paid. See, this all the transactions happen in the one on 30th April. Instead of passing single and a simple entry, we can pass compound entry. जैसा कि ये सारा डेट में एक ही डेट में सारा जो है तीन ट्रांसैक्शन हुआ है. सो एक ट्रांसैक्शन का बदले हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉम्पाउंड एंट्री हम लोग पास कर सकते हैं. जैसे कि अगर सपोज यू वांट टू पास अ simple entry, that means salary account debit to cash account. Salary we know that is expense for the business, it will comes under debit side. Cash goes out, it will come credit side. And the rent also expense, it will come debit side, cash goes out credit side. A commission is expense, it will come debit, and cash goes out outside of the business. Now in this case, three different types of expenses are there, salary, rent and commission. But in three cases in credit side, सो कॉमन दैट इज टू कैश जो है हर जगह पे क्या है, कैश ही दिखता है. सो वी कैन पास कॉम्पाउंड एंट्री. सो सैलरी अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट एंड कमीशन अकाउंट डेबिट to cash account. Here rupees 10,000, here 15,000, last one is 5,000. now the total is 30,000. जैसा कि यहाँ पे जो है आपको यहाँ डेबिट सैलरी अकाउंट, सो इन डेबिट वी कैन नॉट चेंज, क्योंकि सो वाई मीन्स द डिफरेंट नेम्स आर देयर, सैलरी अकाउंट, रेंट अकाउंट, कमीशन अकाउंट. वी विल राइट डेबिट साइड डिफरेंट अकाउंट, अलग अलग अकाउंट लिखना है, सैलरी अकाउंट, रेंट अकाउंट, कमीशन अकाउंट. द क्रेडिट में जो है आपको एक ही कैश लिखने से बस है ये जो, लेकिन बाकी आपको क्या करना, जितना भी अमाउंट है उसको प्लस करके लिख देना. जैसे कि 10,000, 15, 25 प्लस 5 30. सो 30 लिख देने से हो जाए, इसको जो बोलते हैं कॉम्पाउंड एंट्री. सो बैलेंस लेजर को मीन्स आफ्टर पोस्टिंग टू लेजर वी विल टोटल बोथ द साइड. मतलब क्या करेंगे हम लोग, लेजर में पोस्टिंग होने के बाद क्या करेंगे, दोनों साइड हम लोग क्या करेंगे, सो डेबिट साइड क्रेडिट साइड दोनों साइड हम लोग टोटल करेंगे. टोटल करने के बाद क्या करेंगे, जो हायर अमाउंट होता है, सो विल टेक द टोटल कॉलम, जो है टोटल में दोनों को जो हायर अमाउंट लेंगे. सम साइड इधर डेबिट साइड या क्रेडिट साइड विल गेट अ डिफरेंस. सो डिफरेंस में क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस कैरी डाउन, तो उसको बोलते हैं बैलेंसिंग लेजर अकाउंट. जैसा कि नॉर्मली जैसा आपको पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट,
का जो है आपका बैलेंसिंग अकाउंट आएगा। सो दैट मीन्स विल गेट बैलेंसिंग अकाउंट। ये दोनों का जो है, ये दोनों का जैसा कि पर्सनल अकाउंट रियल अकाउंट है, तो आपको असेट लायबिलिटी कैपिटल अकाउंट को जो है बैलेंसिंग अकाउंट आएगा। क्लोजिंग जो है आपको क्या है, क्लोजिंग आएगा जो है आपका नेक्स्ट मंथ जो है इसका क्या आएगा, ओपनिंग आएगा। थर्ड वन दैट मीन्स नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट और वी कैन से दैट इज एक्सपेंसेस और रेवेन्यू और इनकम, देयर इज नो ओपनिंग बैलेंस, क्योंकि जो है ये सारा खर्चा है। सो इट विल बी ट्रांसफर टू ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। So all the direct expenses, direct income will be transferred to trading account. All direct incomes or direct expenses will be transferred to profit and loss account. ये जो है एक साल में जो है ये सारा जो है आपको क्या है, खर्चा हुआ एक्सपेंस इनकम जो है ख़त्म हो जाएगा। इसलिए इसको क्या नहीं रहेगा, नॉमिनल अकाउंट का जो है आपका ओपनिंग बैलेंस नहीं रहेगा, जो है एक्सपेंसेस और रेवेन्यू का। ये दोनों जो है आपको क्या है, ये कैरी फॉरवर्ड होते हैं। जैसा कि अभी जस्ट नाउ वी पास ओपनिंग एंट्री, जैसा कि पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट में जो है आपका ओपनिंग एंट्री पास किया, तो लास्ट ईयर का बैलेंस शीट का जो है जो क्लोजिंग अमाउंट जो है नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बनेगा। उसी तरह लेजर में हर महीना जो है असेट का जो है आपको क्या क्लोजिंग किया जाएगा, वो जो है आपको ओपनिंग बैलेंस जो है निकालने के बाद जो है ट्रायल बैलेंस ट्रांसफर करने के बाद आफ्टर द विल ट्रांसफर टू जो है बैलेंस शीट, ये दोनों जो है बैलेंस शीट में जाएगा। सो दिस वन विल बी ट्रांसफर टू ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओपनिंग एंट्री? ओपनिंग एंट्री, so the balances of assets, liability and capital appear in the balance sheet of previous year accounting period are brought forward in the current accounting period is known as opening entry. So normally we know there are 5 types of accounts are there, जैसा कि आपको पता है, assets, liabilities, capital, next one is revenue or incomes, last one is expenses, ये जो है once we are purchased assets means fixed assets means or asset means it will be going means जो है there are 2 types of assets we know। जैसा कि आपको assets का जो है खास करके जैसा कि फिक्स्ड एसेट का ओपनिंग बैलेंस रहेगा, लायबिलिटी का जो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होता है उसका भी क्या रहेगा, ओपनिंग बैलेंस रहेगा, कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस रहेगा। सो वी आर परचेजिंग फिक्स्ड एसेट मीन्स when we are purchasing fixed asset means we are not using only 1 year, so it will be held in the business for the long period। अगर जैसा कि फिक्स्ड एसेट आप खरीदते हैं 1 साल के लिए नहीं, बहुत साल तक आपका पास रहेगा। ऐसे लायबिलिटी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, फॉर एग्जाम्पल लोन टेकन फ्रॉम बैंक और डिबेंचर्स, so it will be repayable after 1 year or after 12 months, जो है आपका 12 महीना के बाद, यानी तो अगला साल जो है पे किया जाएगा। उसी तरह कैपिटल्स once the owners brought capital into the business means so it will not be what withdrawn by the whole amount will not be withdrawn by the owner। मतलब एक बार अगर कैपिटल लेके आया तो क्या करेगा, बिजनेस में हमेशा के लिए परमानेंट वहाँ पे ब्लॉक रहेगा, वो रहते रहेगा। तो इसका भी क्या है, ये तीनों के लिए जैसा कि फिक्स्ड एसेट, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, कैपिटल, सबका जो है असेट का खास करके जो है आपका ओपनिंग बैलेंस आएगा। सो इसी तरह जैसा करंट एसेट हो गया, बाकी का भी जो है आएगा। लेकिन नॉर्मली जो है आपको क्या असेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, ये तीनों को जो है आपको क्या रहेगा, ओपनिंग बैलेंस अगला साल जो है कैरी फॉरवर्ड होगा। ओपनिंग बैलेंस रहेगा। ये जो है आपका दोनों का, ये जो है 1 साल में क्या हो जाए आपका, क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, नो ओपनिंग बैलेंस, सो क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। सो क्लोज कर देना, क्लोज करके क्या करना आपको जो है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देना। सो असेट्स, लायबिलिटी एंड कैपिटल, तो इसका जो है ओपनिंग बैलेंस रहेगा, दैट मीन्स लास्ट ईयर अमाउंट विल बी कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर। जैसा कि मैंने क्या बताया, सो द बैलेंस असेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल अपीयर इन द बैलेंस शीट ऑफ द लास्ट ईयर। जो लास्ट ईयर का जो बैलेंस होता है नेक्स्ट ईयर में क्या होगा, कैरी फॉरवर्ड होगा। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ओपनिंग एंट्री। क्योंकि ये जो है जब तक बिजनेस का पास रहेगा तब तक ये क्या रहेगा, यूज़ होते रहेगा, कैरी फॉरवर्ड होते रहेगा। ये दोनों जो है 1 साल में जो है आपको ख़त्म हो जाएगा। इसलिए क्या नहीं करेगा, इसको ओपनिंग बैलेंस नहीं रहेगा, क्लोजिंग करके क्या करना, दैट अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट बोलते हैं।
सो डायरेक्ट एक्सपेंस होने से जो है ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में दैट विल बी ट्रांसफर टू व्हाट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. नाउ वी विल अंडरस्टैंड विथ वन एग्जाम्पल बोलूँगा, इससे आप क्या करेंगे इजीली समझ में आ जाएगा. पास opening entry on 1st April 2020 on the basis of the following information taken from Rohit. Pass, we have to pass journal entry as well as we'll posting into ledger. Land and building rupees 2 lakh. Then cash in hand rupees 2 lakh. Then cash at bank rupees 1 lakh. The next stock rupees 1 lakh. The next one sundry creditors rupees 2 lakhs. So this is a question we have to pass now. ओपनिंग एंट्री जो है आपको इसको ओपनिंग एंट्री पास करना. सो एक्चुअली वी नो assets. So what is the rule for asset? When assets are increase means it always comes under debit side. आपको पता है जो है assets जो है बढ़ने से asset जो है हमेशा डेबिट में आएगा. सो इधर में भी करंट एसेट और फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट जो है आपको क्या आएगा, डेबिट में ही हमेशा आएगा. इसी तरह assets and expenses. Next one that is liability and capital and revenue. इसको रूल क्या बोलते हैं? liabilities and capital and expenses. So what is the rule means जो है इसका हमेशा क्या रहेगा, क्रेडिट में आएगा. When it is increase means it will always comes under credit side. अगर assets हमेशा डेबिट में रहेगा, आपको पता है. सो रूल का मुताबिक जो asset हमेशा क्या रहेगा, डेबिट में आएगा, तो एक क्या रहेगा, लायबिलिटी एंड कैपिटल जो है आपको क्रेडिट में रहेगा. ऑलरेडी जो हम लोग देखे हैं रूल्स ऑफ अकाउंट्स में. नाउ वी हैव टू पास जर्नल एंट्रीज फॉर दिस आइटम. को जर्नल एंट्रीज पास करना. डेट, particulars, then I love debit, this is a credit. So business name is Rohit. Journal of Rohit. So first जो है आपको क्या है, डेट इज ईयर इज गिवन 2020 April 1st. So all the assets it will comes under debit side. Land, cash at bank, stock. These are all 4 items are asset will comes under debit side. जो आपको पता है ये सारा जो asset है ये आपका डेबिट में आएगा. land and building account debit. Second one is cash in hand. Third one is cash at bank, and fourth one is stock account. To next one is sundry creditor. It is a liability. It will comes under credit side. Sundry creditor account. So what is the amount for land and building? Rupees 2 lakh. Cash in hand also 2 lakh. And cash at bank rupees 1 lakh. And stock rupees 1 lakh. Now what is the total amount? Now in debit side 6 lakhs is coming. In credit side only 2 lakh.
Now we are getting the difference in credit side 4 lakh. So that is a capital. That is a capital. Capital account, that is a missing figure. We find out this figure 4 लाख. जैसा कि यहाँ देखिए आपको पता है जो है जितना भी एसेट है डेबिट में आ गया, तो जो है क्रेडिट में जो एक ही आइटम दिया सन्ड्री क्रेडिटर्स. कभी कभी समटाइम इट विल बी गिवन इन द क्वेश्चन, समटाइम विल नॉट बी गिवन, वी हैव टू फाइंड आउट. सो कैसा करेंगे उनसे, जो है जितना भी एसेट है उससे क्या करना, जो क्रेडिट दिया रहे उससे क्या करना, माइनस करके जो डिफरेंस आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैपिटल अकाउंट. सो कभी कभी दिया रहेगा बी जो है आपको क्या, दिस आर ओपनिंग बैलेंस ऑफ बिजनेस. नाउ वी कैन हाउ टू पोस्टिंग टू लेजर, कैसे इसको जो है लेजर में पोस्टिंग किया जाएगा. हियर आई हैव प्रिपेयर्ड 6 अकाउंट्स. सो फर्स्ट वन इज लैंड एंड बिल्डिंग. So in land and building, how to posting to land and building means it is your assets. So here we will write first जो है आपको ये लिखना है 2020 April 1st to balance brought down, to balance brought down रुपीज़ 2 लाख. मतलब इसका मतलब बोलते हैं ओपनिंग बैलेंस. सो लास्ट ईयर का जो है अमाउंट जो है आपको क्या किया इस साल कैरी फॉरवर्ड होगा, तो इसमें क्या करेंगे जो है आपको डेबिट में लिखना है, क्योंकि यहाँ पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके लिखना है. सो आपको जो है पोस्टिंग जो है ऑलमोस्ट सिमिलर है, बट वी वोंट राइट ऑपोजिट एंट्री. यहाँ पे ऑपोजिट एंट्री वगैरह जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू ये नहीं लिखेंगे. यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्योंकि ये एसेट है इसको जो है कैरी फॉरवर्ड हुआ है, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके लिखना है. सो फर्स्ट वन इज ओवर. सेकेंड वन कैश इन हैंड, इट ऑल्सो कम्स अंडर डेबिट साइड, क्योंकि एसेट है. सो एसेट साइड जो है आपको डेबिट साइड में लिखना है April 1st to balance brought down, रुपीज़ 2 लाख. नेक्स्ट वन कैश एट बैंक, ये भी एसेट है. आपको डेबिट साइड में क्या लिखना है, डेबिट साइड में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन रुपीज़ 1 लाख. देन सन्ड्री क्रेडिट इज अ लायबिलिटी. सो लायबिलिटी मतलब क्या करना है, आपको लायबिलिटी होने से जो है आपको क्रेडिट साइड में लिखना है, क्योंकि आपको इसका बैलेंस कहाँ आएगा, अपने बैलेंस जो है आपको क्रेडिट में रहेगा. April 1st बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन रुपीज़ 2 लाख. द लास्ट वन कैपिटल also the opening balance will comes under credit side 2020 April 1st by balance brought down रुपीज़ 4 लाख. तो इसी तरह जो है आपको क्या करना है, इसको बोलते हैं ओपनिंग एंट्री. सो आई होप आज जितना भी मैंने आपने पढ़ा आपको समझ में आएगा. सो नेक्स्ट क्लास में जो है नया टॉपिक देखें. थैंक यू.